Hello guys, welcome back to Wikidev channel. Today we are going to see how to find out the resultant of concurrent force system by graphical method. हमने इससे पहले काफ़ी सारे वीडियोस बनाए जिसमें हमने देखा था कि हाउ टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ concurrent force system by analytical method. We have seen that. Now we are going to study graphical method. एक एग्जांपल लेंगे हम इससे पूरा स्टडी करेंगे कि कैसे ग्राफिकल मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं. सो इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. Watch this video from start to end. Okay, now we'll focus on. Before that, let me tell you this graphical method is generally used if the force system is complicated. Okay, and it is suitable and quick in the analysis of frames, trusses, and beams. Okay, now if you focus on question, such kind of this question is important and asked in your previous exams, asked by MSBT for 4 marks. Okay, now किसी भी डिप्लोमा इंजीनियर को या फिर कोई भी इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसको सबसे इम्पोर्टेंट होता है अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर पाए आप तो ही उसको प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हैं. यू विल गेट द राइट आंसर. इफ यू अनेबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ओनली देन देर इज अ प्रॉब्लम. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे, बाद में उसको सॉल्व करेंगे. ओके, सो बी अटेंटिव. नाउ द क्वेश्चन इज लाइक दिस: फोर फोर्सेस of 200 Newton, 300 Newton, 400 Newton and 200 Newton. चार forces है are acting at an angle of 0 degree, 90 degree, 180 degree and 225 degree in anti-clockwise direction. This direction is important here. Okay, from the x-axis at a point. Now at a point means एक पॉइंट पे चार फोर्स एक्ट हो रहे हैं. इट मीन्स दिस इज कॉल्ड एज concurrent force system. On same point, same plane, if number of forces are acting, such force system is called as concurrent force system. Okay, at a point बोला है तो we'll take that point here. Okay, we'll see all acting away from the point, and this is also important. Away means उस पॉइंट को सभी फोर्सेस खींच रहे हैं, पुलिंग. ओके, तो डायरेक्शन अवे शो करना है, टुवर्ड्स नहीं. फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स इन मैग्नीट्यूड, मतलब आर निकालना है हमें, एंड डायरेक्शन थीटा निकालना है. विथ हॉरिजॉन्टल हाउ मच द एंगल इट इज मेकिंग बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड ओनली. सो दिस इज द क्वेश्चन. विल स्टार्ट दिस, विल solve this, you know, step wise. Okay, actually I forgot to show the degree here. Now first of all you have to draw xy axis. Now I have shown xy axis with the red color यहाँ पे. Okay, and I have also shown from x axis, if you see this positive axis, यहाँ से 0 degree start होता है, 90 degree at positive y axis. At negative y axis it is 180 degree. At negative y axis, negative x axis 180 degree, negative y axis it is 270 degree, and again at positive axis 360 degree. ऐसे एक revolution complete होता है, and actually it is going in anti-clockwise direction. Okay, so there is no problem as they have mentioned here, anti-clockwise direction from the x axis, और हम ऐसे ही जा रहे हैं. अभी देखते हैं four forces. Now 200 Newton is acting at 0 degree. Okay, 0 degree यहाँ है और at a point बोला है, तो हम point जो है यहाँ पे लेंगे with black color. इस point पे चार force act हो रहे हैं at origin समझो. Okay, so पहला फोर्स कितना है 200 न्यूटन एट 0 डिग्री. सो 0 डिग्री यहाँ है, इस पे हमें ये फोर्स शो करना है हॉरिजेंटली, एंड उसका जो डायरेक्शन है वो अवे है. सो एरो इधर आएगा. ओके, एंड वी हैव टू आल्सो राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स, दैट इज 200 न्यूटन. ओके, देन if you see the second force, that is 300 Newton acting at an angle of 90 degree. Okay, तो यहाँ से हमें
अपवर्ड में जाना है 90 डिग्री है, ओके, एंड डायरेक्शन अवे शो करना है। राइट डाउन द मैग्नीट्यूड दैट इज 300 न्यूटन, ओके, देन 180 डिग्री पे 300 न्यूटन एक्ट हो रहा है। सो 180 डिग्री इधर है, यहाँ पे 300 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है, डायरेक्शन विल बी अवे, एंड राइट डाउन द मैग्नीट्यूड दैट इज 180 डिग्री पे 400 न्यूटन एक्ट हो रहा है, थर्ड फोर्स दैट इज 400 न्यूटन, and the last one is 200 newton acting at an angle of 225 degree from x axis। अब यहाँ से आपको जाना है 225 डिग्री, तो 225 डिग्री will occur at one in between 180 डिग्री एंड 270 डिग्री, तो यहाँ पे वो एक्ट होगा। तो अगर हम ड्रॉ करेंगे इसको, तो इस एक्सिस से कितना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 225 माइनस 180 डिग्री, यहाँ तक माइनस कर लेंगे तो यहाँ से कितना एंगल है हमें पता चलेगा। अभी इसको माइनस करेंगे तो 225 माइनस 180 दैट विल बी 45 डिग्री, ओके। तो यहाँ से 45 डिग्री पे एक फोर्स बनाना है आपको, ओके। तो अभी हम वो फोर्स बनाएंगे एट एन एंगल ऑफ 225 डिग्री, और फ्रॉम दिस नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव एक्सिस से एक्स एक्सिस से आएगा 225, नेगेटिव एक्स एक्सिस से आएगा 45, ओके। विल टेक फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस एट 45 डिग्री, 45 डिग्री मतलब दोनों के सेंटर में आएगा, फ्रॉम नेगेटिव वाई एक्सिस 270 और 180 फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस, इन दोनों के बीच में आएगा 25 डिग्री 45 डिग्री, ओके। सो आई कैन टेक फ्रॉम दिस एक्सिस as 45 degree, we'll write with the red color that angle 45 degree, and the magnitude is 200 newton, इसका magnitude है 200 newton। So in this way we have converted this statement into this diagram, okay। Now we have to convert this diagram into the space diagram, okay। Now what is meant by space diagram, space diagram में करना क्या होता है हमें, we'll write here space diagram। In this we have to apply Bose notation, okay। I will apply with different color Bose notation. Bose notation is nothing but you have to give two notations for every force. Now for this 200 Newton, I will write here suppose A, and every force will have two notations, A and B. I will write B here, okay। Now this 200 Newton will become AB, okay। फॉर 300 न्यूटन बी इज, अभी राइट साइड में एक फोर्स, अभी देखो 200 न्यूटन को डाउन में और अप में लिखा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, अब ये वर्टिकल है 300 न्यूटन, तो इसको राइट में और लेफ्ट में चाहिए। राइट में बी है तो विल जस्ट गिव टू लेफ्ट सी, ओके। नाउ दिस 300 विल बिकम बी सी, ओके। नाउ 400 को ऊपर सी है, नीचे हमें डी लिखना है, ओके। सो 400 विल बिकम द फोर्स दैट इज सी डी, एंड 200 you can, if your wish, अभी आपका विश है, या तो आप ई लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर ये डी ए हो जाएगा, डी ई लिख सकते हैं या फिर डी ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस साइड में ए है, इस साइड में डी है, ओके। अभी आई विल राइट हियर ई, if I write here this force 200 will become DE, if I don't write no problem, it will become DA, so at least every force have two notations, okay। So I have written here E for this 200 Newton, okay। Now in this way I have given the Bose notation, these notations are called as Bose notation, okay। तो यहाँ पे हमारा बन गया स्पेस डायग्राम। अब इसको कन्वर्ट करना है हमें वेक्टर डायग्राम में विथ सम स्केल, अप्रोप्रिएट स्केल। नाउ हमें स्केल लेना है, अभी ये जो हम डायग्राम बनाएंगे वो ग्राफ पेपर पे, सो दिस इज नाउ माय ग्राफ पेपर, आई विल राइट हियर स्केल, ओके। दैट स्केल विल बी फॉर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, जो बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको ये 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर है, ओके। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू
आपका जो ग्राफ पेपर रहता है उसमें जो बॉक्सेस रहते हैं वो 1 सेंटीमीटर के हिसाब से रहता है. Okay, so 1 centimeter is equal to, now observe the forces. They are in 200, 300 like that. So you can take 1 centimeter is equal to 50 Newton or 100 Newton. Okay, so I will take 100 Newton here. Take the maximum. Okay, आप 10 न्यूटन भी ले सकते हैं लेकिन ग्राफ पेपर में वो बैठेगा नहीं, इसलिए मैंने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 न्यूटन लिया है. नाउ अभी ये जो 200 न्यूटन है वो स्केल के हिसाब से कितना होगा, 100 न्यूटन से डिवाइड करेंगे तो ये होगा आपका 2 सेंटीमीटर. आई विल राइट हियर विद डिफरेंट कलर, ब्लैक कलर के इन ब्रैकेट में. ये ए बी जो फोर्स होगा इसको हम लाइन में कन्वर्ट करेंगे तो 200 न्यूटन, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 न्यूटन के हिसाब से ये होगा 2 सेंटीमीटर, ये होगा 3 सेंटीमीटर. ओके, 100 न्यूटन से डिवाइड करो, ये होगा 4 सेंटीमीटर और ये होगा अगेन 2 सेंटीमीटर. सिंपल. 50 से करेंगे तो ये 4 होगा, ये 6 होगा, 8 होगा और ये 4 होगा. नाउ इट्स योर विश टू टेक हाउ मच स्केल यू वांट टू टेक. मैंने अभी यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 न्यूटन लिया है. ओके, नाउ टू स्टार्ट दिस विल स्टार्ट फ्रॉम ए बी बी सी सी डी और डी ई. वेक्टर डायग्राम हमें निकालना है. तो सबसे पहले आपको अगेन पॉइंट शो करना है. ओके, स्टार्ट पॉइंट दैट इज ए. अभी जब आप ये ड्रॉ करेंगे तो ध्यान में रखना है कि ग्राफ पेपर पे हर साइड में आपको जगह हो. ओके, तो आई विल टेक एट दिस सेंटर. यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे हम. इस पॉइंट को मैं नोटेशन अभी कन्वर्ट करूंगा. अभी ये जो इधर कैपिटल में लिया है अभी हम उसको स्मॉल में लिखेंगे. अभी ए पॉइंट मेरा यहाँ है. टेक द रेड कलर ओनली, इट विल बी बेटर. ओके, अभी ए पॉइंट यहाँ है, ए बी बनाना है आपको. ओके, तो ए बी विल नाउ विल टेक 2 सेंटीमीटर. ओके, यहाँ से 2 सेंटीमीटर जाना है आगे. एंड कीप इन द माइंड आपको डायरेक्शन भी ऑब्जर्व करना है और पैरेलल बनाना है फोर्स. नाउ अभी ये हॉरिजेंटल है तो ये भी हॉरिजेंटल ही आएगा. 2 सेंटीमीटर जाना है आपको वहां से. सिंपल है, बहुत सिंपल है. थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, हैव सम पेशेंस. मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए. अब यहाँ से 2 सेंटीमीटर आगे जाएंगे, 2 ब्लॉक्स. I hope it is visible, otherwise we'll take dark only. Okay, now we got the second point that is B here. AB, AB मिला हमें. Now we have to also show the direction. डायरेक्शन हम सेंटर में दिखाएंगे, जैसा ये डायरेक्शन है वैसे ही दिखाना है, लाइक दिस, इस साइड में. ओके, अभी BC को ऑब्जर्व करेंगे हम, फोर्स BC. Okay, no, not will not call this force now 300 200. We'll call this AB BC CD like this. Okay, now BC is 3 centimeter and how's going, it is vertical. अब A से B, AB बनाने के बाद B से हमें स्टार्ट करना है फोर्स. ओके, उसका पॉइंट होगा अभी B. पहले हमने A लिया, फिर अभी B से अभी पॉइंट लेना है यहाँ से. अभी इस फोर्स को ऑब्जर्व करो, पैरेलल लेना है. अभी ये वर्टिकल है तो यहाँ से भी वर्टिकल अपवर्ड में जाएंगे. कितना, 3 सेंटीमीटर. Okay, so we'll go upward from this point for 3 centimeter. Okay, straight जाना है, parallel जाना है उस force को. 3 blocks will go upward. Okay, like this. I will give the name that is C. C नाम देना है हमें. BC हो गया. और उसको डायरेक्शन, अभी डायरेक्शन ये भी अपवर्ड जा रहा है तो सेंटर में डायरेक्शन शो करेंगे अपवर्ड. ओके, ए बी बन गया, बी सी बन गया. ए बी था हमारा 2 सेंटीमीटर. आई विल राइट हियर 2 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज
3 सेंटीमीटर, बिकॉज 300 न्यूटन का फोर्स है। अब 400 न्यूटन, अभी जहाँ सी खत्म हो गया मतलब बी सी बन गया, तो सी से हमें पॉइंट लेना है। नाउ सी डी, विल टेक सी डी, दैट इज 400, उसका लेंथ है 4 सेंटीमीटर एंड इट इज हॉरिजेंटल गोइंग लेफ्ट साइड। ओके, यू टू ऑब्जर्व द डायरेक्शन, अब ये लेफ्ट साइड में जा रहा है, पहला वाला राइट साइड, फिर अप साइड, फिर लेफ्ट साइड। ओके, लेफ्ट साइड में जाएंगे 4 सेंटीमीटर, यहाँ से 4 स्ट्रेट जाना है पैरेलल टू दैट सी डी। ओके, 1 2 3 4। Okay, now give the name, this is D, and show the direction like this. इसको जो डायरेक्शन है वैसे शो करना है, एंड दिस इज हाउ मच, 4 सेंटीमीटर। ओके, 1 2 3, अभी फोर्थ फोर्स है, अभी ये एंगल हॉरिजेंटल को बना रहा है 45 डिग्री। तो ऐसे यहाँ पे आप प्रोटेक्टर लगाएंगे उल्टा, और यहाँ से ऐसे 45 डिग्री आप उसको मेजर करेंगे। ओके, जनरली 45, अभी यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसमें से जाएगा ये। ओके, तो आई डोंट हैव स्केल हियर, बट यू हैव टू ड्रॉ इट विथ स्केल, प्रॉपर ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट यूज करना है एंड ड्रॉ करना है। और इसका मैग्नीट्यूड जो है 200 है, तो लेंथ लेना है आपको 2 सेंटीमीटर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम डी। ओके, सो ए से स्टार्ट किया हमने, ए बी बी सी सी डी, अभी डी से ई लेना है, डी ई लेना है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ हॉरिजेंटल। अभी हॉरिजेंटल से 45 डिग्री, वो कैसा लेंगे अभी हम, जो लेंथ है 200 है और एंगल है 45 डिग्री। आई विल शो यू। यहाँ से हम आगे जाएंगे 2 सेंटीमीटर at an angle of 45 degree like this, and this angle now is 45 degree from here, from horizontal, and you have to show the direction जैसा इसका है सेंटर में, इस साइड में। वेट, लाइक दिस। ओके, सभी फोर्सेस का डायरेक्शन हम सेंटर में शो कर रहे हैं। ओके, और इसका जो लेंथ है 2 सेंटीमीटर है। ओके, एंड दिस पॉइंट इज ई नाउ, डी ई। सो वी हैव converted this space diagram into vector diagram. This diagram is called as vector diagram. Okay, अभी हमने सारे फोर्सेस को रिप्रेजेंट किया वेक्टर डायग्राम में। ओके, विद द स्केल दैट इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 न्यूटन। नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट। अभी देखो, ये ऑटोमेटिक अगर क्लोज होता पॉलीगॉन तो इसका रिजल्टेंट 0 आता। अभी ये क्लोज नहीं हुआ है, आपको क्लोज करना है। ओके, नाउ ई और ए क्लोज करना है। अभी क्लोज कैसे करेंगे, विथ डैश लाइन, डैश से स्ट्रेट क्लोज करेंगे। ओके, विल टेक डिफरेंट कलर फॉर रिजल्टेंट। ओके, लाइक दिस, मैंने इसको अभी क्लोज किया। Otherwise, what I will do, I will first make a line, or close to E to A, and then I will break it like this. Now this is a dash line. Now you have to observe, if this force is coming like this, DE इस साइड में आ रहा है, तो जो ई ए है या फिर ए ई है, रिजल्टेंट का अपोजिट, इसके अपोजिट में, अभी ऐसे नहीं शो करना है डायरेक्शन इस साइड में। ओके, उसके अपोजिट में शो करना है। ये जो फोर्स है इसको अपोजिट में शो करना है, लाइक दिस। Now this arrow will come like this, opposite to this force.
और ये जो ए बी है इसके अपोजिट में भी चलता है। ओके, वो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उनके अपोजिट में। नाउ ई ए को हमने डायरेक्शन भी शो किया। नाउ दिस ई ए इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट आर। Okay. Now we have to calculate the length of EA and convert it into uh, that magnitude of force into Newton with the help of this scale. Now आपको स्केल रखना है यहाँ पे, ई ए का लेंथ आपको वहाँ पे कैलकुलेट करना है. So that length will come around. Now this R is equal to length of this EA. Okay, and that length will come around. Now into you have to do the scale. जो स्केल लिखा है हमने उसको मल्टीप्लाई करना है. ओके, सो नाउ द लेंथ ऑफ ई ए विल कम अराउंड 3.75 और 3 पॉइंट. नाउ इट विल नॉट बी एक्यूरेट. देखो सभी के वैल्यूज थोड़ा बहुत चेंज होंगे पॉइंट में इधर उधर, एंड एनालिटिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बट इट विल बी नियरली द सेम. ओके, इसको आप एनालिटिकल मेथड से भी सॉल्व करो. समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई निकालो, अंडर रूट समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर करो, आर मिल जाएगा आपको. उसकी वैल्यू लगभग सेम रहेगी. देर विल बी लिटिल डिफरेंस और सभी के आंसर्स थोड़ा सा वेरी होंगे पॉइंट में. 3 पॉइंट किसी का 6 आएगा, किसी का 8 आएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम. नाउ इनटू आपको करना है स्केल. स्केल कितना लिया है हमने, 100 न्यूटन. सो इनटू 100 करना है. तो ये होगा आपका 375 न्यूटन. That is resultant. Okay, so we got the R, that is 375 न्यूटन. ओके, नाउ इसको आपको एंगल भी शो करना है विथ हॉरिजेंटल. अभी जो ये हॉरिजेंटल लाइन है उससे आपको एंगल लेना है. अभी ये एंगल चेक करना है विथ प्रोटेक्टर डी, दैट इज थीटा. ओके, थीटा आपको मिलेगा यहाँ पे. ये हॉरिजेंटल लाइन से आपको ये इंक्लाइन जो फोर्स है दैट इज रिजल्टेंट, उसका एंगल चेक करना है, दैट इज थीटा. अभी ये थीटा जब आप चेक करेंगे इट विल बी अराउंड 25 डिग्री. ओके, सो विल राइट हियर 25 डिग्री. ओके, सो नाउ वी गॉट दिस थीटा. द आंसर इज लाइक क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स इन मैग्नीट्यूड. सो वी द आर वी हैव दैट इज 375 न्यूटन and the direction that is theta with horizontal that is 25 degree. Okay, so this is expected, for the examiner. Student should solve this problem in this way. अभी आपको है ना, व्हाट आई वांट टू से दैट ये जो आंसर है आपका थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है. किसी का 360 न्यूटन आएगा, किसी का 380 न्यूटन आएगा, नो प्रॉब्लम. दे कैन अंडरस्टैंड कि थोड़ा बहुत यहाँ पे जब आप लाइन लेंगे, एंगल लेंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है. एंड दिस एंगल आल्सो 25 डिग्री आया है. किसी का 24 आएगा, किसी का 23 आएगा, किसी का 26 आएगा, किसी का 27 आएगा. 2 डिग्री प्लस माइनस में आपका आंसर वैलिड रहेगा. ओके, सो डोंट बॉदर अबाउट इट. नाउ इन दिस वे वी हैव सॉल्व दिस concurrent force system by graphical method. We have learned in this video how to find out this resultant and its direction. Thank you very much for showing your patience to watch this video. If you have any doubts, comment your doubts in the comment section. I can reply definitely. Thank you very much. Take care. Bye bye.